Good morning, dear students. Today we will talk about chapter 5th in science, that is coal and petroleum. Okay, so let's start the chapter. In this chapter we will discuss about coal and petroleum. Okay, what is coal and petroleum? So let's start. We use various material in our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. You know that our surroundings have varieties of material. Okay, some material are naturally found in nature and some are man-made things. Okay, like sun, air, these are the natural things, okay, around us. And man-made things are like toys, beds, house, these are things are the man-made. So you have to fill the activity here, natural and man-made things. Okay, in your book you have to do this by yourself. You will write here natural things and you will write here man-made things. Okay, so now come to the next. Does this list air, water, soil and minerals? ओके, सो इस लिस्ट में आप एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स इंक्लूड करेंगे. सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दीज आर द नेचुरल थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, they are called natural resources. Okay, so air, water, soil, minerals, these are the natural resources. They are found in naturally in nature. Okay, so next is, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एक्सहस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? क्या हम ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ये जो एयर, वाटर, सॉइल है वो एक्सहस्ट हो सकती है, मीन्स ख़त्म हो सकती है, कभी समाप्त हो सकती है? हैव यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट क्लास 7 इन वाटर लिमिटलेस रिसोर्स? Okay, is water is a limitless resource. So in this light of availability of various resources in nature, natural resource can be broadly classified into two kinds. So here is the two kind of natural resource. Okay, we have two kind of natural resource according to their classification. So first is inexhaustible natural resource and second is exhaustible natural resource. Okay, so now come to the inexhaustible natural resource. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example, sunlight and air. Okay, so inexhaustible natural resources are those which are present in unlimited quantity in the nature. Okay, ये nature में unlimited quantity में पाए जाते हैं. That means they कुड नॉट बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. ये ख़त्म नहीं हो सकते कभी ह्यूमन एक्टिविटी से. अगर हम इनका यूज़ जितना भी करेंगे ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते. ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर. ओके, सनलाइट एंड एयर आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज exhaustible natural resource. The amount of this resource in nature is limited. So exhaustible natural resources are found in the nature in limited quantity. They can be exhausted by human activity. ये human activity के थ्रू समाप्त हो सकते हैं. अगर हम इनका यूज़ ज़्यादा कर लेंगे, मोर क्वांटिटी में कर लेंगे तो it can be exhausted. Now example of these resources are forest, wildlife and minerals. Coal, petroleum and natural gases. So wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, these are the example of exhaustible natural resource. अगर हम इनका यूज़ ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा हम इनका यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ में तो ये एक दिन समाप्त हो जाएगा. ओके, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए ये इनका यूज़ अगर हमारे थ्रू ज़्यादा किया जाएगा तो ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे. ओके, तो दीज आर द टू काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. हियर इज द एक्टिविटी. यू विल रीड इट एक्टिविटी. नाउ here is, in this chapter we will learn about some
exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These are the exhaustible natural resources which are found in the limited quantity in our environment. Okay, these are formed from the dead remains living organism. So जो ये natural resource है exhaustible, ये हमारे environment में dead remains means जो कोई मर जाते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, उनके डेड रिमेन्स जो होते हैं, जो उनकी डेड बॉडी वहाँ पे रहती है, तो बहुत साल बाद उसके कुछ रिमेन्स, कुछ पार्टिकल्स, कुछ बोन्स वहाँ पे रह जाती हैं बहुत साल तक, तो उन्हें कहते हैं फॉसिल्स. ओके, सो जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको फॉसिल्स कहा जाता है. तो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. ओके, इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं. सो कोई भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बहुत साल पहले मर गया है, उसके कुछ भी रिमेन्स पार्टिकल्स अगर हमें बाद में मिलते हैं, लाइक डायनासोर्स है, वो कितने साल पहले मर गए हैं, अगर उनके कुछ डेड रिमेन्स हमें मिल रहे हैं कहीं भी, तो वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाएंगे, वो फॉसिल्स कहलाएंगे. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ कोल. ओके, व्हाट इज कोल? You may have seen coal is heard about it. आपने कोल देखा होगा और उसके बारे में सुना होगा. You can see the picture. It is coal. It is a hard and stone and it is black in color. ये hard होता है, stone like होता है और black color का होता है. Coal is one of the fuel which used to cook food. कोल का यूज़ हम, कोयले का यूज़ हम किस लिए करते हैं? फूड बनाने के लिए भी करते थे अर्लियर टाइम में. It was used in railway engines to produce steam टू रन द इंजन. सो अर्लियर टाइम में, बहुत पहले के टाइम में, रेलवे इंजन्स में भाप से चलते थे रेलवे इंजन्स, तो वहाँ पे भी कोयले का यूज़ होता था. ओके, तो ये बहुत पहले टाइम की बात है जब भाप वाले इंजन होते थे, तो उसमें भी कोयले का यूज़ होता था. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में. कोल इज़ ऑल्सो यूज टू फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री. सो कोल का यूज़ बहुत इंडस्ट्री में फ्यूल के फॉर्म में किया जाता है. ओके, मीन्स इसको बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. लाइक इससे खाना पकाने के लिए, कहीं पे किसी चीज़ के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क के लिए ये यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ स्टोरी ऑफ कोल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ कोल, हाउ it will be invented, how it is came. About 300 million years ago, the earth had dense forest in the low-lying wetlands area. Due to the natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. So about 3 million years ago, 300 साल पहले की बात है, अर्थ में क्या हो गया था कि बहुत सारे फॉरेस्ट होते थे, वेटलैंड्स होते थे, ऐसे एरिया होते थे जहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होते थे. तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, लाइक फ्लूडिंग, तूफान, बाढ़, इन सब से क्या हो गया था, फॉरेस्ट क्या हो गए थे, सॉइल में धंस गए थे. नेचुरल प्रोसेसेस हुई, लाइक क्या आता है, आपने देखा है साइक्लोन्स आते हैं, तूफान आता है, तो इससे क्या होता है कि फॉरेस्ट क्या हुए थे कि वो सॉइल में धंस गए थे. तो दे आर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम. सॉइल में ये सब डिपॉजिट हो गए थे, दब गए थे. तो दे वर कंप्रेस्ड, और वहाँ पे कंप्रेस्ड हो गए थे, अच्छे से दब गए थे. ओके, तो द टेम्परेचर इज ऑल्सो रोज एज द सिंक डीपर एंड डीपर देन अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर. सो डे बाय डे जब ऐसा हुआ, सारे प्लांट, सारे फॉरेस्ट धंस गए, दब गए इन सॉइल में, और टेम्परेचर बढ़ता गया. टेम्परेचर से हाई प्रेशर से जो डेड प्लांट्स थे गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल. जो डेड प्लांट्स थे, जो मरे हुए प्लांट्स थे, जो दब गए थे, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग गए कोल में. तो एज अ कंटेन, कोल कंटेन्स मेनली कार्बन. कोल्स में क्या होता है, कार्बन. आप कभी कोयला जलाओगे खाना बनाने के लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. ओके, सो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. ओके, सो जो धीरे धीरे प्रोसेस हुई, जो डेड वेजिटेशन थे प्लांट के, वो कन्वर्ट हो गए कोल में, तो इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं. ओके, कार्बोनाइजेशन कहते हैं.
तो सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कोल्ड द फॉसिल फ्यूल, और कोल को फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। ओके क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम में, जब 300 साल पहले प्लांट्स क्या हो गए थे, सारे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट पर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू दब गए थे, कंप्रेस्ड हो गए थे, देन बाद में वो कोल में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, अंडर द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई होता गया तो वो प्लांट्स क्या हुए, जो फॉरेस्ट थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए। तो बहुत टाइम बाद, जब बहुत साल बाद उन्हें देखा, उनके डेड रिमेन्स देखे, तो उस डेड रिमेन्स क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। तो कोल्स इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन द फिगर, तो यू कैन सी द पिक्चर 5.2। हेयर इज अ कोल माइन। ओके, ये कोयले की एक माइन है। माइन मीन्स क्या होता है, कोयले की खान, जहाँ से कोयला मिलता है, निकलता है ज़्यादा। ओके, सो व्हेन हीटेड इन एयर, कोयल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसे हीट किया जाए तो वो जल के, अगर हम उस कोयला जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोयल, कोल तार एंड कोल गैस। सो कोयले से इंडस्ट्रीज में यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कोक बनाया जाता है, कोल तार बनाया जाता है एंड कोल गैस बनाई जाती है। ओके, सो नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।